Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are the principles of ecology? And we have to follow this principle so that the processes, mechanism and function of an ecosystem are maintained. So these principles are very important because function or the process or ecology is very important because ultimately we get food, energy from ecosystem. For example, if we are growing the crop, it is a agro ecosystem, and if we grow the crop and we follow the principles of this ecology or agro ecosystem, then production is high and sustainable, and we can get sufficient amount of food for over a long period of time without degradation in natural resources. तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इकोलॉजी के हैं वो हमको फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो इकोलॉजी जो अपनी साइंस है, जो नॉलेज है किसी इकोसिस्टम की, वहाँ जो प्रोसेस हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, अल्टीमेटली हम वहाँ से प्रोडक्टिविटी पा रहे हैं। कुछ जो प्रोडक्टिविटी हो रही है, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है नेचुरल इकोसिस्टम में। और अगर हम एग्रो इकोसिस्टम की बात करें तो हम क्रॉप ग्रो करते हैं एग्रो इकोसिस्टम में, तो वहाँ से भी हम प्रोडक्शन ले रहे हैं। फूड प्रोडक्शन है, सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, चाहे फाइबर है, फूड है, फीड है। तो ये अगर हमें प्रोडक्शन सस्टेन रखना है, लॉन्ग रन में ज़्यादा लेना है, सस्टेनेबल रखना है, तो हमें प्रिंसिपल्स कुछ फॉलो करने पड़ेंगे ताकि जो उस एग्रो इकोसिस्टम के या जो उस इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हैं वो मेंटेन रहे, वो प्रोसेस मेंटेन रहे, मैकेनिज्म चलता रहे, रुके नहीं, टूटे नहीं। अगर वो मैकेनिज्म और प्रोसेस टूट गए, ब्रीच हो गए, कहीं ब्रेक हुए कहीं, तो हमारा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और फिर हम उसको लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई प्रिंसिपल्स ऑफ ecology are very important, and we have to follow such type of principles so that the processes are maintained. So what are the important principles? So important one is the recycle of the inputs, recycle of not input, recycle of output. Sorry, output in it means if what are the residue, it should be recycled. If biomass, whatever biomass is generated in an ecosystem, that should be recycled. So output should be used as a input so that it is recycled. Water can be recycled, water harvesting process. So this is very important so that energy is maintained in an ecosystem. Suppose this is an ecosystem and biomass is produced. And suppose biomass is has outflow from this ecosystem, then nutrients outflow is outside that system, energy outflow is that system. So that's why recycle is very important, and this recycle maintain the nutrient flow. Actually, nutrient flow, and nutrient come from soil, and then it is absorbed by the crop, and if it is recycled then it remain in the system. So recycling of biomass residue is very important for this nutrient flow and the energy flow. So this is the important one. तो जितना भी हमारा बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, हम जो यूज़ कर दे रहे हैं सीरियल्स में, पल्स में जो बाहर जा रहा है, लेकिन जब बायोमास जो भी है, चाहे लीफ है, स्टेम है, उसको रिसाइकिल करना चाहिए उस सॉइल में. खासतौर से जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? सॉइल से आते हैं, वेदरिंग से. और वो न्यूट्रिएंट्स अगर उस खेत से बाहर जाते रहे बार बार, तो सॉइल की कैपेसिटी एक दिन खत्म हो जाएगी और वो न्यूट्रिएंट मिलेंगे नहीं. तो जितना भी पॉसिबल हो वो न्यूट्रिएंट रिसाइकिल होना चाहिए. तो वो चाहे वो किसी भी वेस्ट के थ्रू आ रहा हो, चाहे वो एनिमल वेस्ट के थ्रू हो, चाहे वो क्रॉप रेजिड्यू हो, बायोमास हो, लीफ लिटर हो, कुछ भी हो. So that's why biomass and residue recycle so that nutrients are maintained, energy is maintained. So this is very important, recycling. Similarly, water recycle, water को भी अगर हम recycle को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो water है वहाँ उसको एक जगह कलेक्ट करके उसको बार बार हम यूज़ करें, चाहे इरिगेशन में करें, चाहे हम पॉन्ड बनाएं, चाहे हम उसको वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाएं. तो रिसाइकिल बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली ऑफ दिस बायोमास एंड रेजिड्यू. Another is soil health. Actually, in ecosystem, the productivity, primary productivity is very important. That is biomass production. क्रॉप जो हम कोई ट्री है, श्रब है, ग्रास है, या हम एग्रो इकोसिस्टम की बात करें तो क्रॉप है, तो बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है. लीव्स आ रही हैं, स्टेम आ रही हैं, फिर उसमें फ्रूट आ रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, चाहे ऑयल सीड है, चाहे पल्स है. तो जो बायोमास जो प्रोडक्शन होता है, दैट इज डिसाइडेड बाय सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल फर्टिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस सॉइल फर्टिलिटी इज गवर्नड बाय द ऑर्गेनिक मैटर, and this organic matter is the key factor for soil health. Soil health अच्छी होनी चाहिए, physically, chemically, biologically it should be active, and organic matter and humus is the key component of this soil health. If organic matter is high or humus content is very good, then soil health is very good, and biological activities are high. So if organic matter is more, then biological activity are very high, bacterial, fungus, nematode, whatever.
चाहे हम फंगस हो, बैक्टीरिया हो, चाहे अर्थवर्म हो। तो जो सॉइल हेल्थ है उसका होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वहाँ जो क्रॉप्स उग रही हैं, चाहे वो ट्री हो चाहे श्रब हो, अगर नेचुरल इकोसिस्टम भी है, फॉरेस्ट है, तो वहाँ अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट हाई है तो वहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी, वहाँ डिकम्पोजिशन भी अच्छा होगा, मिनरलाइजेशन अच्छा होगा, सॉइल हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, केमिकल हेल्थ मतलब ना पीएच ना बहुत ज़्यादा जाएगी ना कम जाएगी, salinity भी मेंटेन रहेगी। तो दिस ऑर्गेनिक मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इनहांस द ऑर्गेनिक मैटर and try to maintain the organic matter in that particular ecosystem. So soil health, to give proper emphasis on soil health so that soil physical, chemical and biological properties are maintained. और ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी डेप्थ के लिए, उसकी डेंसिटी के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसकी पोरोसिटी के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूट्रेंट एबिलिटी, पीएच, सैलिनिटी, एसिडिटी। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी, बिना बैक्टीरिया के, फंगस के न्यूट्रेंट रिसाइकिल हो ही नहीं सकते, मिनरलाइजेशन होगा ही नहीं, मिनरलाइजेशन इज मीडिएटेड बाय माइक्रोब्स। सो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी। The next principle is maintain the biodiversity. Species richness in a particular ecosystem is very important. When we talk about the natural ecosystem, different species are required. Monoculture नहीं होना चाहिए, polyculture वहाँ होना चाहिए, so that there different type of grasses are there, different type of trees are there, different type of shrubs are there, different जो इंसेक्ट स्पीसीज होनी चाहिए, सो दैट दे हैव कंट्रोल ओवर ईच अदर। अगर एक स्पीसीज ज़्यादा हो जाती है, फॉर एग्जांपल मोनोकल्चर, हम जो क्रॉप ग्रो करते हैं दैट इज मोनोकल्चर, हम क्रॉप ही ग्रो कर रहे हैं और कुछ नहीं है, तो वहाँ की प्रोडक्टिविटी को डेंजरस है या वो हो सकती है कि कोई माने कोई डिसीज़ आ गई, जैसे रस्ट आ जाता है वीट में, पूरा रस्ट खत्म हो जाता है, या कोई इंसेक्ट आ गया, फॉर एग्जाम्पल फॉल आर्मी वर मेज में आ गया एंड होल क्रॉप इज स्पॉइल। तो वहाँ कोई इकोसिस्टम जहाँ स्पीसीज रिचनेस है, प्लांट स्पीसीज हैं, इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, दे हैव कंट्रोल ओवर ईच अदर, सो दैट कोई भी स्पीसीज हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं कर सकती है। वहाँ प्रेडेटर भी होंगे, पैरासाइट भी होंगे, डिसीजेज भी होंगी, बैक्टीरिया भी होंगे, एक दूसरे पर कंट्रोल रहता है। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट है, वहाँ अगर हिरन की संख्या बहुत, डियर की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो पूरी घास खा जाएंगे वो, तो वहाँ जब घास खा जाएंगे सॉइल एक्सपोज हो जाएगी, तो वहाँ सॉइल डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होने चाहिए, कार्निवोर्स होने चाहिए। तो लॉयन है वो हिरन की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये एक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, स्पीसीज रिचनेस होनी चाहिए, सो दैट वन स्पीसीज कैन नॉट हार्म दी अदर स्पीसीज। कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को, कई इंट्रैक्शन होते हैं, पैरासिटिज्म होता है, प्रेडेटिज्म होता है, कम्युनलिज्म होता है, एमिलिज्म होता है, कंपटीशन है, सिम्बायोसिस है, बहुत सारे ये जो इंट्रैक्शंस हैं, दे आर मेंटेन्ड बाय द बायोडाइवर्सिटी एंड दिस इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। सिमिलरली फंक्शनल डाइवर्सिटी, डिफरेंट स्पीसीज हैव डिफरेंट फंक्शन। कोई जो है बायोमास प्रोडक्शन कर रहा है, कोई मिनरलाइजेशन कर रहा है, कोई फूड प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, कोई फीड प्रोडक्शन में है, कोई फाइबर कर रहा है। So there are so many function in an ecosystem. So functional diversity and genetic diversity both are important, so that there is a control over each other and one species cannot go beyond a level. नहीं तो कोई species बहुत ज़्यादा हो जाएगी और फिर उसके harmful effect start हो सकते हैं। So that's why biodiversity to maintain the productivity. अब हर स्पीसीज अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी रखती है, अगर सबका कंट्रोल होगा, एक नेचुरल सिस्टम ग्रो करेगा, स्टेबल होगा और सबके अपने अपने फंक्शन होंगे, तो हमें जो प्रोडक्टिविटी मिलेगी उसमें डाइवर्सिटी होगी और वो पॉपुलेशन विल बी स्टेबल एंड विल बी सस्टेनेबल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो द टोटल कम्युनिटी विल बी सस्टेनेबल। नहीं तो कम्युनिटी सस्टेनेबल नहीं होगी, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और फिर उसके हार्मफुल इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। Then synergy means the cooperation and interaction between the ecological process, ecological interaction, for example symbiosis, mutualism, so that the total productivity is increased. तो ecological जो interactions हैं उनके बीच में cooperation होनी चाहिए, interaction, integration होनी चाहिए। जो process है, प्रोडक्टिविटी का प्रोसेस है, चाहे डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, वेदर इट इज ए न्यूट्रेंट रिसाइकिल प्रोसेस, वेदर इट इज एनर्जी फ्लो प्रोसेस, सो देयर इज ए इंट्रैक्शन, देयर शुड बी इंट्रैक्शन एंड इकोलॉजिकल integration, so that overall productivity is increased, whether it is a primary productivity by the plant or whether it is maybe secondary productivity by the animal. तो वहाँ जो इकोसिस्टम में सिनर्जी हम चाहते हैं, मींस इंटीग्रेशन, कॉपरेशन चाहते हैं, ताकि दो स्पीसीज मिलकर ऐसा काम करें कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी टोटल बढ़ जाए। तो ये जो सिनर्जी तभी पॉसिबल है जब बायोडाइवर्सिटी होगी। तो सिनर्जी यहाँ हमारी चाहिए इंट्रैक्शन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, सो दैट टोटल प्रोडक्टिविटी इज मेंटेन्ड एंड इज सस्टेनेबल। सो बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन, इकोलॉजिकल प्रोसेस के इंटीग्रेशन होने के लिए सिनर्जी का होना बहुत जरूरी है। तो ये तभी हो सकता है जहां बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो, स्पीसीज इन रिचनेस हो, एंड वी शुड गिव एम्फेसिस ऑन सिनर्जी सो दैट इंट्रैक्शंस आर मेंटेन्ड। तो
ये एक प्रिंसिपल है सिनर्जी का, ताकि हमारे जो इकोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो मेंटेन रहे। इंट्रैक्शंस, सारे इंट्रैक्शंस वहाँ होने चाहिए, चाहे वो पैरासाइट का होना भी जरूरी है, प्रेडेटर का होना भी जरूरी है ताकि वो हार्मफुल इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकें। कार्निवोर्स का इसलिए जरूरी है ताकि वो हर्बीवोर्स को कंट्रोल कर सकें। हर्बीवोर्स का इसलिए जरूरी है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रास स्पीसीज को कंट्रोल कर सकें। सर दैट्स व्हाई सिनर्जी इज रिक्वायर्ड। देन सेल्फ सफिशिएंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर द सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है, सेल्फ रिलायंट प्रोसेस नहीं है, देन इट इज नॉट सस्टेनेबल। फॉर एग्जांपल एक क्रॉप फील्ड है, वहां हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, केवल फर्टिलाइजर देकर ग्रो किए जा रहे हैं, तो वहां धीरे धीरे सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। सेल्फ रिलायंस सिस्टम नहीं है, बाहर से इनपुट खरीद के ला रहे हैं, बाहर से हमने यूरिया लिया है, डीएपी लिया है, लेकिन हमने जो खेत में जो अवेलेबल हमारे इनपुट थे, जो बायोमास प्रोडक्शन हो रहा था या जो हम पर FYM था या जो लीटर फॉल था, उसको हमने यूज ही नहीं किया, तो सेल्फ एफिशिएंसी नहीं होगी। तो यह हमें क्या करना है, सेल्फ एफिशिएंसी के लिए डिक्रीज द डिपेंडेंस ऑन परचेज्ड इनपुट। सो डिक्रीज dependency on purchased input. It doesn't mean that do not use input from outside. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इनपुट खरीद के नहीं डालना है, लेकिन जो बाहर से हम इनपुट खरीदें उसको हम कम से कम खरीदें, और जो अपने फार्म पे, जो अपने इकोसिस्टम में जो डेवलप है, वहां पे जो रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, वहां पे जो अवेलेबल है, उसी को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें। इट इज लिंक्ड विद रिसाइकिल। इफ देयर इज रिसाइकिल, इट मींस सेल्फ सफिशिएंसी इज हाई। सो दिस इज द प्रिंसिपल। सो अगर अब सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है तो दैट सिस्टम इज नॉट सस्टेनेबल। वो सिस्टम 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल चलेगा, उसका वो सिस्टम टूट जाएगा और वहां कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे डेजर्ट में कोई सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है वहाँ, इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन करना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ रेनफॉल नहीं है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ अपना प्रोडक्टिविटी मेंटेन हो रही है, वहाँ सेल्फ सफिशिएंसी पे ज़्यादा एम्फेसिस देनी चाहिए। बाहर से इनपुट हमें कम से कम लेने चाहिए। सपोज देयर इज अ डिसीज इन योर क्रॉप, तो मान लीजिए रस्ट आ गई, तो रस्ट के लिए हम क्या करेंगे, बाहर से एक फंजीसाइड ले खरीदेंगे, उसको डालेंगे। लेकिन हमारे बायोलॉजिकल इंट्रैक्शंस इस तरह के होने चाहिए, इस तरह के हम पहले से सिस्टम मेंटेन करना चाहिए कि रस्ट का सेल्फ कंट्रोल वो स्पीसीज कर सके। तो हमको डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप यूज़ करने चाहिए, या डिफरेंट लोकल अवेलेबल मटेरियल जो है, या इंडिजिनियस टेक्निकल नॉलेज जो है, या हर वो मटेरियल हैं जो किसी प्लांट से मिल सकते हैं, जैसे नीम का है या दूसरे जो मटेरियल हैं, उनको हम यूज़ करना चाहिए जो अपने इकोलॉजी में डेवलप हो रहे हैं, इकोसिस्टम में जो डेवलप हो रहे हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट हैं चाहे एनिमल प्रोडक्ट हैं, उनको ही हमें यूज़ करना चाहिए। और जो सिंथेटिक मटेरियल उनको कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए। दैट्स वाई self-sufficiency is very important for sustainability point of view. Then reduction in energy flow. Actually this energy flow is very important. Carbon flow is there, nutrient flow is there, nitrogen cycle is there, phosphorus cycle is there, and first the energy is manufactured by produced by the plant by the solar energy, then it is transferred to herbivores, then it is transferred to carnivores, then transferred to omnivores. So this is the energy flow. सिमिलरली देयर इज ए वाटर फ्लो, देयर इज ए विंड फ्लो, देयर इज सोलर रेडिएशन फ्लो, इसे हम कह सकते हैं, जो प्लांट से आया, प्लांट से हर्बीवोर्स में गया, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में गया। तो ये जो एनर्जी फ्लो है, इसको हम जो एनर्जी लॉस होता है उसको कम से कम करें, सो दैट प्रोडक्टिविटी इज मेंटेन्ड, बायोमास इज मेंटेन्ड एंड ऑल द ट्रॉफिक लेवल आर मेंटेन्ड। सो हाउ वी कैन रिड्यूस दिस एनर्जी लॉस, हाउ वी कैन मेंटेन द एनर्जी, एंड इज ए प्रॉपर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, जो वहाँ की स्पीसीज है, क्रॉप, अगर हम क्रॉप की बात करें तो क्रॉप मैनेजमेंट, अदरवाइज ग्रास मैनेजमेंट, ट्री मैनेजमेंट। तो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द न्यूट्रिएंट साइकिल फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड न्यूट्रिएंट फ्लो जो रिसाइकिल जो हमने यहाँ बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो एनर्जी का जो लॉस है वो कम से कम हो। अगर वाटर फ्लो अगर बाहर निकल जा रहा है अपने इकोसिस्टम से, दैट इज द लॉस। बायोमास प्रोडक्शन जो है खेत से बाहर जा रहा है, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी। अगर रन ऑफ हो रहा है, दैट इज द न्यूट्रिएंट लॉस। सो दैट्स व्हाई वी कैन रिड्यूस द एनर्जी लॉस बाय सॉइल मैनेजमेंट, रिड्यूस द सॉइल इरोजन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, वाटर कैप्चरिंग करके उसको फील्ड में ही यूज करना है, सो दैट एनर्जी लॉस इज मिनिमम। सो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, सो दैट ecological process means productivity, decomposition, energy flow, nutrient flow are maintained, and we can get the good food, good productivity from an ecosystem. Thank you very much.